वृद्ध वैद्य परंपरा, अनुभव सिद्ध रेफरेंसेस से आपको इसमें और जानकारी मिलेगी। अभी ये जो कल्प को मैंने नाम लिए हैं ये अनुभव सिद्ध कल्प है। हर एक वैद्य अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में डिफरेंट फॉर्मुलेशंस करके अलग तरीके से अपने द्रव्य को एकत्र करके अपने कल्प बना सकता है, उसका नाम भी अलग वो दे सकता है। सो आचार्य चरक जी ने बताया है, जो उन्होंने महाकषाय बताया है वो बुद्धिमान वैद्यों के लिए बनाए हैं, और जो कल्प है वो मतिमंद वैद्य के लिए है, ऐसा उनका मानना है। तो आप उस तरीके से अलग अलग फॉर्मुलेशंस कर सकते हैं। तो हम अभी अगली डिसीज़ के बारे में देखेंगे, दैट इज़ किडनी स्टोन। इन रिनल स्टोन चंद्रप्रभा वटी have very important role along with some other drugs. So how it works, let's see. Urinary calculi is one of the most common condition in urological disorder. आपने कई बार देखा रहेगा कि ये सारे पेशेंट्स आयुर्वेद के ओपीडी में आपके आए होंगे। बहुत सारे नॉन मेडिकोज भी इसके ऊपर उपचार करते हैं, तो वो उसमें यशस्वी होते हैं। वो क्या यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, वो भगवान जाने। बट एज अ वैद्य कैसे चंद्रप्रभा वटी काम करती है, उसके साथ कौन से और ड्रग काम करते हैं, अभी हम इस स्लाइड में स्टडी करते हुए देखते हैं। सो इन इंडिया 10 to 12% पॉपुलेशन इज़ अफेक्टिंग बाय दिस रीनल स्टोन्स। उसके जो लक्षण रहते हैं, तो फ्रिक्वेंट मिक्चुरेशन ये उसका पहला साइन रहता है। इंटरमीडिएट पेन दैट इज़ रेडिएट्स टू फ्लैंक्स, एंड उसकी जब आत्यायिक अवस्था रहती है वो मॉर्निंग में ही रहती है। तो जनरली स्वेटिंग एंड रेस्टोरेशन, और उसका जो पेन रहता है वो ज़्यादा शिफ्टिंग रहता है। तो आचार्य हमारे जो सुश्रुत है वो हम उसे सर्जरी के फादर बोलते हैं। उन्होंने मूत्रास्मरी का वर्णन उनके ग्रंथ में किया है। तो जनरली कफदोष प्रधान और कफहर लेखन कर्म से हम ये जो व्याधि है कफदोष प्रधान होती है, तो इसमें हम लोग लेखन कर्म से, मूत्रल कर्म से हम इस पर काम कर सकते हैं। चंद्रप्रभा वटी में जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो जनरली डायूरेटिक है, एंटीसेप्टिक है, कफशामक है, लेखनीय कर्म है और मूत्रल कर्म है। उनका मेन कर्म हमने स्टार्टिंग के पीपीटी में देखा है कि वो कैसे काम कर सकते हैं। सो चंद्रप्रभा वटी हेल्प्स टू फ्लशिंग स्टोन्स, that is urinary calculi, and helps to restoring the activity of renal function, and further infections also, stopping the further formation of stones. So for this we can use various combination. We can use Chandraprabha Vati with Shvetvarpati, Chandraprabha Vati with Kokshuradi Gugul, or we can give Anupan as Punarnava Kashai, Varunadi Kashai, and there are itself Ashtanga Hruday Tailing, Ghrutapana. That is a different part of discussion. Well, when starting with a lecture series on disease wise, that time we can discuss in detail. So in Chandraprabha Vati has also, as per text of Bhaishya Ratnavali, Mutrashmari, so Aptavachan, and this is we can say, as per this discussion, we can say it has good action on Mutrashmari. So another important disease, that is anemia, Pandutva. This is also mentioned in reference of Bhaishya Ratnavali Rogadikar, Panduvikar. So Chandraprabha Vati contains Loha Bhasma, Suvarna Makshik, Vidanga, and some Deepan Pachandravya. So it can be used in anemia, that is Panduvikar. Chandraprabha along with Suvarna Makshikadivati, Arogyavardhini and Kamduda have very good effect to control anemia. So in medical conditions will be different, that time we can use another medicines also as per medical condition. For this we can say these are the some other drugs for important treatment of Panduvikar. So CPV, that is Chandraprabha Vati, contains Loha Bhasma, Shilajit, Suvarna Makshik, as already we have discussed, are Balya and Rasayan. So we'll proceed further. This picture show gynecological disorders. Chandraprabha Vati, we can say
is equal to diabetes or prameha. So another Chandraprabhavati is equal to, we can say, Stri Rog, in which Stri Roga Chandraprabhavati has very good action, that is amenorrhea, oligomenorrhea, dysmenorrhea, Katishul. In this all condition we can use Chandraprabhavati, as Chandraprabhavati contains very good drugs. That drugs has very good action in all these medical gynecological conditions. In these conditions we can use Chandraprabhavati as per patient's medical condition. So Chandraprabhavati has very good anti-spasmodic action due to it contains Trikatu and Loha Bhasma, so it reduces menstrual cramps and abdominal pain during menstruation when patient with excessive PV bleeding. So excessive PV uterine bleeding, it has many causes, but common cause is uterine polyp fibroid. In this condition, CPV, that is Chandraprabhavati, it can be used with Kanchanar Gogul if size of polyp or fibroid will be not more than 2 mm to 4 mm. In this condition we can use. Due to Lekhan property, Kapha Shamak property, this drug can do action. If patient has excessive bleeding, in this condition we can use Chandraprabhavati with Praval Pishti, Mukta Pishti, Mocharas and Daru Haridra. So in this medical condition we can use Chandraprabhavati. Patients with Katishul, low back pain and Dorbalya, in this condition Chandraprabhavati we can use along with Ashwagandha Arishta or Ashwagandha Churna and Shatavari Kalpa. So famous medical condition in women, that is PCOS, that is polycystic ovarian syndrome, and PCOD. In this condition it's very long topic to discuss. In short we can say it is a Bijadushti or ovarian failure. In this condition Chandraprabhavati along with other drugs and along with Shodhan treatment like Panchakarma, which removes cyst and corrects ovarian function and also controls the bleeding. Chandraprabhavati, when patient with heavy bleeding, we can use Chandraprabhavati with Ashokarishta, Kamadudha, Musali, Khadiradi, Kashay. If patient suffering with oligomenorrhea, in this medical condition we cannot use Ashokarishta. We can use Chandraprabhavati with Kumari Asav, Sukumaram Kashay, Kanchanar Gugul as a scrapping Lekhan Karma and Agni Tundivati. In this condition we can use with Matra Basti as per medical condition, that is Kapha obstruction, we can use Vaman, and that is a Pitta Vikruti, we can use Virechan therapy. Abdominal distension, in this medical condition Chandraprabhavati contains some Shara, then 3 Lavana and Dipan Pachan Dravya. So it has very good action. And abdominal distension, Anaha Rogadika in Shloka they have already mentioned, but specifically in Shukrashaya अवस्था, मतलब शुक्रक्षय के कारण जो अपचन उत्पन्न होता है, ऐसी बद्धकोष्ठता में या मलबद्धता में जो वहाँ पे हीमोराइड्स पाइल्स तैयार होते हैं, वहाँ पे बर्निंग होता है, गुदद्वार में वीकनेस आता है, ऐसे कंडीशन में चंद्रप्रभावती का रोल खूब महत्वपूर्ण है. जैसे ग्रंथों के रेफरेंस में उन्होंने बताया है, चंद्रप्रभावती इन सारे मेडिकल कंडीशन एनोरोटल डिसऑर्डर में काम करती है. सो चंद्रप्रभावती यहाँ पे वातानुलोमक का और दीपन पाचन का मुख्य तरीके से काम करती है. अपचन, कॉन्स्टिपेशन अगर क्रॉनिक होता है, और कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी है जो यूरोजेनेटल कंडीशन से, जैसे प्रमेय की अवस्था है, शुक्रस्त्राव, लालामेह, हस्तिमेह, हरिद्रामेह, मंजिष्ठामेह, वातपित्त अनुबंध और शैथिल्य आता है, तो इस सारे कंडीशन में चंद्रप्रभावती इटसेल्फ काम अकेले नहीं कर सकती, तो उसके साथ हमें नागभस्म, पुष्पधनवा या वसंत कुसुमा का रस हम लोग यूज़ कर सकते हैं. सो ये देखने के बाद हम आगे जाते हैं और कौन सी मेडिकल कंडीशन में चंद्रप्रभावती काम कर सकती है. तो हमने जो ये रेफरेंस लिया है, ये भी कोई मन की बात नहीं है, जो उन्होंने अधिकार बताया है, कामला, हलिमक, ये सारे व्यंजन शब्द श्लोक में आए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसके ऊपर चंद्रप्रभावती कैसे काम कर सकती है. तो इसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो द्रव्य बताए हैं उन्होंने,
तो उसमें दंती है, तिरुत है, कालमेघ है, और ये सारे द्रव्य रुद्रपदक आम्ला में हम यूज़ कर सकते हैं। विरेचन कर्म इन द्रव्यों का मुख्य कर्म है। शिलाजीत भेदन कर्म करता है। तो कामला की इस अवस्था में इन द्रव्यों के कारण चंद्रप्रभावटी अलॉन्ग विथ अदर लिवर ड्रग लाइक आरोग्यवर्धिनी और अदर ड्रग्स वी कैन यूज़ असो कि पांडुत्व तो तैयार होता है कामला में, जिसमें सुवर्णमाक्षिक है, लोह भस्म है। तो इस कंडीशन में हम लोग चंद्रप्रभावटी को यूज़ कर सकते हैं। तो हम आगे जाते हैं कि और कौन सी कंडीशन है। तो ये कुष्ठ विकार की हमने स्लाइड दिखाने का प्रयास किया है। तो कुष्ठ विकार में कौन से अवस्था में जो क्लेदजन्य संप्राप्ति है, कफ दोष डोमिनेंट त्वचा विकार है, ऐसे त्वचा विकारों में क्लेदनाशन का कार्य करने के लिए और रस रक्त धातु का पोषण करने के लिए, धातु परिमणन सुधारने के लिए और रसायन कार्य अपेक्षित रहने के लिए हम चंद्रप्रभावटी ऐसे मेडिकल कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस एज पर टेक्स्ट। सो हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्री मैच्योर इजैकुलेशन, PME, जो हमारे भाई है जितने भी प्रैक्टिस करने वाले, तो उनके मेडिकल प्रैक्टिस में मैं किस कम्युनिटी का नाम नहीं लेना था, रीजन का भी नहीं लेना था, बिकॉज ये हमारा लेक्चर है। तो हम रिकॉर्डिंग है, इसके लिए कुछ शब्द मैं हाथ में रख के बात करता हूँ। तो ये सारी समस्या कुछ कम्युनिटीज़ में ज़्यादा पाई जाती है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। इसके बहुत सारे कारण से, वो कारण हम लोग जब लेक्चर सीरीज चालू करेंगे डिसीज़ वाइज, उस टाइम हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली प्री मैच्योर इजैकुलेशन में हमारे यहाँ कंसर्न है कि चंद्रप्रभावटी कैसे काम करती है। तो चंद्रप्रभावटी में जो कंटेंट है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट है शिलाजितु। तो शिलाजितु ये रसायन कर्म है, बल्य है। तो शिलाजितु होने के कारण हम चंद्रप्रभावटी इस मेडिकल कंडीशन में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से हम लोग पित्त प्रकृति के व्यक्ति में चंद्रप्रभावटी ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं कर सकते। बाकी मेडिकल कंडीशंस में हम लोग चंद्रप्रभावटी को त्रिवंग भस्म या वंग भस्म, जाति फलादिवटी, ऐसे बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हम इसको यूज़ करके कर सकते हैं। उसमें अनुलोमक द्रव्य भी दे सकते हैं, त्रिफला चूर्ण। कोई इस कंडीशन में अनुबंध ज़्यादा होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, और इसमें अगर शयात्मक विकृति रहेगी, क्रॉनिक मास्टरबेशन की हिस्ट्री रहेगी, तो ऐसे केसेस में रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगता है। तो उसमें हम अश्वगंधारिष्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कॉज एंड डिपेंडिंग अपॉन मेडिकल कंडीशन वी कैन यूज़ द ड्रग। सो इसके आगे कौन से मेडिकल कंडीशन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन, दैट इज़ इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी में चंद्रप्रभावटी कैसे काम करती है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर बोलने के लिए कम से कम 3 या 4 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो हमारा अभी यहाँ पे जो उद्देश्य है कि चंद्रप्रभावटी के ही बारे में बात करना है। तो इनफर्टिलिटी के बारे में तो हम काफ़ी कम बात करेंगे। तो कौन से कंडीशन में हम लोग इनफर्टिलिटी के चंद्रप्रभावटी को काम कर सकते हैं, तो जनरली वी कैन कंसर्न विथ फर्स्ट फीमेल इनफर्टिलिटी। तो फीमेल इनफर्टिलिटी के जो केसेस है, जैसे कि रिकरेंट एबॉर्शन के केसेस है, जिसमें गर्भाशय के जो स्नायु है, जैसे मायोमेट्रियम हमसे बोलेंगे स्पेसिफिकली, उसमें दौर्बल्य आने के कारण और बीज ग्रहण नहीं होता है या कंसेप्शन होता ही नहीं है। अगर कंसेप्शन होता है तो गर्भपात होता है, या 3-4 महीने तक रख के उसके बाद गर्भपात होता है। तो इस सारे कंडीशन में चंद्रप्रभावटी जो यूटेराइन शैथिल्य है उसको कम करती है। इसके साथ हम लोग फलघृत के उत्तर बस्ती का भी उपयोग कर सकते हैं। देर आर अदर मेडिकेशंस ऑल्सो। सो चंद्रप्रभावटी इस कंडीशन में एक ड्रग का काम करता है। एज कंसर्न विथ मेल इनफर्टिलिटी, तो मैं पहले बात की पहले स्लाइड में, दैट इज़ PME, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। सो ये सारे शुक्र विकारों में, शुक्र दोष विकारों में चंद्रप्रभावटी का मुख्य रोल है। चंद्रप्रभावटी इन सारे मेडिकल कंडीशन में अच्छी तरीके से काम करती है। तो जितने सारे फर्टिलिटी के कॉजेस है, तो जैसे कि ल्यूकोरिया एक है, कि जिसमें ल्यूकोरिया में भी फीमेल के हमने जो पहली स्लाइड दिखाई उस टाइम हमने उसकी बात नहीं की, बट उसका चंद्रप्रभावटी अलॉन्ग विथ लोद्रासव एक गुड कॉम्बिनेशन है। हमने इसके पहले बात की PCOD की, तो उसके पहले बात की हमने डायबिटीज़ की, तो प्रमेह की। सो स्पेसिफिकली टेलिंग प्रमेह, सो वी हैव नॉट मेंशन डायबिटीज़। सो फर्दर आई एम स्पेसिफिकली टेलिंग टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज़ केसेस में हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पूरी तरह से जानकारी ली कि एग्जैक्टली चंद्रप्रभावटी कौन से मेडिकल कंडीशन में काम करती है,
और किस तरीके से काम करती है, उसके कौन से रोगाधिकार है, और उस रोगाधिकार में चंद्रबाबा वटी के साथ हम कौन से ड्रग को भी साथ ले सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा क्लिष्ट टॉपिक है कि उसका डोज कैसे लें। तो चंद्रबाबा वटी का डोज वैश्य रत्नावली में 4 रत्ती तक वर्धमान मात्रा तक लेने के लिए कहा है, और जो हमारे CCRS के बुक्स है जिन्होंने कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस दी है वहाँ से हमने रेफरेंस लेने की कोशिश की। तो उन्होंने सेफ डोज बताया है 1 ग्राम और 2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली। मैक्सिमम डोज उन्होंने बताया है 6 ग्राम। तो ये अब हर एक वैद्य व्यक्ति के दोष बल काल व इस हिसाब से बदल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे अनुपान के बारे में। तो यस, आयुर्वेदा की कोई भी औषधि अनुपान के बाद अनुमान को हम छोड़ के नहीं दे सकते। अनुपान काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अनुपश्चात दियेति, दैट इज़ अनुपान। तो हमने इसके ऊपर बात करेंगे कि चंद्रबाबा वटी के साथ कौन से अनुपान हम ले सकते हैं। तो सबसे बड़े हमने प्रेजेंटेशन के पहले कुछ स्लाइड देखे, तो वो स्लाइड का एक रेफरेंस दैट इज़ तक्र, दधिमंड, बकरी का मांस, जांगल पशु पक्षियों का मांस रस और दुग्ध, जल, शीतल जल, ये हम चंद्रबाबा वटी के साथ अनुपान की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसका रेफरेंस जो है वैशेष रत्नावली का जो पार्ट आया है चंद्रबाबा वटी के बारे में अर्श विकार अध्याय में, वहाँ का रेफरेंस है, वहाँ पे इसका हमें रेफरेंस मिला, तो आपके सामने रखने का हमने प्रयास किया। सो इसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। सो ये बात हमने शब्द लिखा है तो लोगों के कुछ द्विधा मनस्थिति आएंगे कि आयुर्वेद के तो ड्रग हम सब हर जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें हाथ पीछे रख के ही बात करनी चाहिए। और इसका रेफरेंस भी मेरे पास है, जो वही चंद्रबाबा वटी का रेफरेंस जो वैशेष रत्नावली से लिया है वहाँ ही उन्होंने जिक्र किया है। सो इन दिस कंडीशंस वी कैनॉट यूज़ चंद्रबाबा वटी। विच आर द कंडीशंस? अत्यंत शीतवात सेवन करने वाला व्यक्ति, धूप में भ्रमण करने वाला व्यक्ति, अति स्निग्ध आम्ल कटु रस का सेवन करने वाला व्यक्ति और ज़्यादा मैथुन करने वाला व्यक्ति, इस कंडीशन में चंद्रबाबा वटी हम नहीं दे सकते, या चंद्रबाबा वटी लेने के बाद ये कर्म हमने नहीं करने चाहिए। तो इस कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन से जो प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए चंद्रबाबा वटी के बारे में। और समरी को जाने के पहले हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे कि विच कंडीशन, मेडिकल कंडीशन से जिसमें हम लोग चंद्रबाबा वटी को नहीं यूज़ कर सकते। अभी ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसका रेफरेंस कहाँ से मिला, कहाँ से नहीं मिला, तो इसके बारे में इतना ही बताऊँगा कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हम जो कोर्स सीखे हैं दैट इज़ इंटीग्रेटेड मेडिकल कोर्स एज पर कंसर्न विथ महाराष्ट्र। सो वी आर BMS, दैट इज़ BMS। सो इन मेडिकल कंडीशंस में मुझे लगता है कि चंद्रबाबा वटी हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। और ये जो मेरा अनुमान है और बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को इसको भी फॉलो करते हैं, उनको ही फॉलो करके मैं ये आपके सामने बात रख रहा हूँ। इन पेप्टिक अल्सर कंडीशन, इन अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन, इन थैलेसीमिया, इन सारे मेडिकल कंडीशंस में। और एक विवादास्पद मुद्दा है कि हाइपरटेंशन के पेशेंट में चंद्रबाबा वटी यूज़ करनी कि नहीं करनी है, बिकॉज इनमें ज़्यादा सॉल्ट ऐड किए हैं। तो जो जिसमें हम लोग चंद्रबाबा हाइपरटेंशन कंडीशन से जिसमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट बोलते हैं, तो इस कंडीशन में चंद्रबाबा वटी को हम लोग कुछ देने के लिए हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो ये यहाँ तक हमारा अभी प्रयास कंप्लीट हो गया कि आपके सामने चंद्रबाबा वटी को रखने का। तो इसके आगे हम बात करेंगे कि आज के लेक्चर की समरी क्या है। ये पूरे 1 आवर के लेक्चर में हमने चंद्रबाबा वटी के बारे में क्या सुना। तो चंद्रबाबा वटी का हमने एक शब्द सुना कि चंद्रबाबा वटी का नाम क्यों चंद्रबाबा रखा गया, चंद्रबाबा ने इन्वेंट की, इसके लिए उसका नाम चंद्रबाबा। और उसको खाने से हमारे शरीर को प्रभा उत्पन्न होती है, ग्लो प्राप्त होता है, इसके लिए डार्कनेस कम होता है चंद्रबाबा। उसके कंटेंट में कचूर है, उसके भी काफ़ी सारे 3-4 अलग अलग अभिप्राय है। और चंद्रबाबा का जो मेन एक्शन है तो यूरोजेनिटल सिस्टम पे ज़्यादा एक्शन है। शुक्र आर्त उत्पादक जो इंद्रिय है दैट इज़ ओहरी, टेस्टिस, इसके ऊपर उसका ज़्यादा एक्शन है। उसको बल देके, उनका शैथिल्य दूर करके, शमन कार्य करके उसको स्थिति में लाने के लिए, अच्छे कंडीशन में काम करने के लिए चंद्रबाबा वटी काम करती है। रसायन, बल्य और शामक कर्म से चंद्रबाबा वटी काम करती है। इसमें जो अनदर मुख्य कल्प है इंग्रेडिएंट दैट इज सुवर्ण माक्षिक, लोह भस्म, ये रक्तवर्धक है, बलदायी है और पित्त शामक है, जिसकी वजह से हम लोग उसको कामला
पांडु इस मेडिकल एनीमिया कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। शिलाजितु इसका मेन कंटेंट है, वो रसायन है, शुक्र आर्तव दोष नाशक है, धातु परिपोषण क्रम को ठीक करने वाला है। तो इस कंडीशन में गुगुल इसमें अनदर एक कंटेंट है, दैट इज़ वात वाहिनियों को बल देने वाला वात शामक और शोथनाशक, शोभनाशक और बल्य और रसायन गुगुल कल्प है। और इसमें एक खड़ी साकर, जो उसे हम लोग मराठी में खड़ी साकर बोलते हैं, सीता विज्ञान से प्रसादन रुद्ध कर्म करने वाली है। और लास्ट में जितने भी कल्प द्रव्य उन्होंने मेंशन किए हैं वो मूत्रल, शामक और पाचन द्रव्य है। तो इस तरीके से हमने चंद्रभाववटी के बारे में पूरी जानकारी ली। कल के जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग और एक नए द्रव्य के साथ आपके सामने पूरी बातें रखने का प्रयास करेंगे। हमने ये पूरे प्रेजेंटेशन में जितने भी आपको डायग्राम्स दिखाई है, तो हमने यहाँ पे ड्राइड हर्ब को दिखाया है। तो ये उद्देश्य ये है कि जब हम द्रव्य गुण का अध्ययन चालू करेंगे तो हम उसको आपके सामने आर्द्र द्रव्य दिखाएंगे। और जो हमारे फील्ड वर्क होते हैं द्रव्य गुण की अभ्यास कार्यशाला, दैट इज़ द्रव्य वनस्पति अभ्यास, उस दौरान फील्ड वर्क पे आपको और द्रव्य देखने को मिलेंगे। तो हम लोग जब मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं तो हमारी मेडिसिन ज़्यादा समय तक अच्छी रहे, शुष्क द्रव्य ही हम यूज़ करते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे सब शुष्क द्रव्य दिखाने का प्रयास किया। सो ये हमारे चंद्रभाववटी की समरी थी। सो मेजर रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ आयुर्वेदा अध्ययन, along with me Dr. Ramdas Garje and Dr. Seema Garje are the medical directors and chief physicians of Dr. Garje Ayurveda Panchakarma Clinic, where we are doing Ayurveda practice since 12 years by blessings of Lord Dhanvantari and friends like you. So it's a strong request to you, please do subscribe our YouTube channel, press the bell icon button so you can get notifications, updated activity, whatever we are doing for educational. And these are the activity we are doing, that is educational activity, a free lecture activity. We are not charging single rupees to anyone. So another request, follow us on social media so we can extend this activity to all over the students of Ayurveda across the globe, across the India. Follow us on social media, that is Facebook page, that is Instagram and WhatsApp. So we request, that is our WhatsApp number, please note down, is 9987287847. Kindly save this number in your phone so you can get messages by broadcast. And request, please add this number in your WhatsApp group so we can able to share lecture activity in your group, and also follow on Twitter. So another request, Ayurveda Adhyayan activity just not concerned with to giving lectures. It's activity concerned with to educate Ayurveda students, to share PDF study material and reformation and standing in different angles with different approaches with education of Ayurveda. So we are stopping here in this lecture. So thank you all, dear students and doctors, behalf of Garje Ayurveda Clinic. Thanks a lot for listening carefully. So we'll meet tomorrow in another session of Ayurveda Adhyayan. Bye bye. Take care. Jai Ayurveda.